اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ماں بچہ صحت پروگرام کا چلڈرن اسپتال اور الارٹ اسپتال 2 میں شدید غذائی کمی کا شکار بچوں کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 6 بیڈ پر مشتمل سینٹر بنانے کے لیے اسمبلی حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد ماں بچہ صحت پروگرام کا چلڈرن اسپتال اور الائڈ اسپتال 2 میں شدید غذائی کمی کا شکار بچوں کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ 6 بیڈ پر مشتمل سینٹر بنانے کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تفصیلات عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا کون کون سی سہولتیں مزید میسر ہوں گی؟ آج بالکل ماں بچہ صحت پروگرام کی جانب سے الائڈ اسپتال کے بعد اب ڈی ایچ کیو اور چلڈرن ہسپتال میں سینٹر بنانے کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین کا یہ کہنا ہے کہ 6 بیڈ پہ مشتمل سینٹر بنائے جائیں گے، جہاں پہ شدید غذائی کمی کا شکار جو بچے ہیں انہیں علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں فیصل آباد ضلع میں اس وقت صرف اور صرف الائڈ اسپتال میں جو ہے وہ سینٹر بنایا گیا ہے 6 بیڈ پہ مشتمل، جہاں سوکڑا پن کا شکار جو بچے ہیں، بیماری کا شکار ہیں، انہیں جو ہے وہ الائڈ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ماں بچہ صحت پروگرام کا تعینات اسٹاف اور ماہرین امراض بچکان جو ہے وہ مریض بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اور اب ان کا کہنا ہے کہ سینٹر میں جو ہے وہ جس کے پیش نظر ڈی ایچ کیو اور چلڈرن اسپتال میں جو ہے وہ سینٹر بنائے جائیں گے، اور اس کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو جو ہے وہ سمری بھیجی ہوئی ہے۔ جیسے ہی حکومت کی جانب سے سمری منظور کی جائے گی تو ڈی ایچ کیو اور چلڈرن اسپتال میں 6 بیڈ پہ جو ہے وہ سینٹر یہاں پہ بنائے جائیں گے۔ اس طرح ضلع بھر میں جتنے بھی شدید غذائی کمی کا شکار جو کہ بچے رپورٹ ہو رہے ہیں بی ایچ یو آر ایس سی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں، تو انہیں علاج کے لیے جو ہے وہ ڈی ایچ کیو چلڈرن اسپتال بھی بھجوایا جا سکے گا تاکہ چلڈرن ہسپتال جا سکے گا۔ عزادار حسین اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کی زیر صدارت کارکردگی جائزہ اجلاس علی عنان قمر نے پی ٹی سی ایل، واسا اور ایس این جی پی ایل کو یومیہ بنیادوں پر کھلے مین ہولز کو کور کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ آج بالکل ضلع فیصل آباد میں مختلف مسائل کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا ڈپٹی کمشنر آفس میں، جس میں تمام تر ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو مسائل تھے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، خاص طور پہ تمام ایسے اسکول جو کہ مین شاہراہوں پر واقع ہیں ان میں چھٹی کے وقت اور اسکول لگنے کے وقت جو ہے باقاعدہ بورڈ رکھنے اور ٹیچرز کو خود آن روڈ آ کے بچوں کو روڈ کراس کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو اپنے موجود شہر کے اندر کھلے مین ہولز ہیں ان کو کور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے سر، ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی خاص طور پہ مین ہولز کے حوالے سے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ الزام ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ مین ہولز کھلے رہتے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں بچوں کے نکلتے وقت جو ہے زیبرا کراسنگ نہ ہونے سے یا بورڈ نہ ہونے سے اکثر حادثات ہوتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس میں جتنے بھی مین ہولز ہیں وہ تقریباً تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے 3، اس میں پی ٹی سی ایل ہے اور اس کے بعد سوئی گیس کا محکمہ ہے اور واسا ہے، ان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک پراپر واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے تاکہ یہ تینوں ان ٹچ رہیں، کیونکہ اکثر پرابلم یہی آتی ہے کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس نے آگے دوسری ڈپارٹمنٹ کو ریفر کرنا ہوتا ہے، تو ان کی جلدی جو ہے ریزولوشن کے لیے ہم نے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں جہاں پہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو بچے جو دوڑ کے باہر نکلتے ہیں، یا اکثر دیکھا گیا کہ ٹریفک وہاں پہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوتی، تو اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں بچوں کو سڑک پار کروائیں چھٹی کے ٹائم، اور وہاں پہ کوئی ایسے سائن بورڈ لگائیں جس سے کم از کم جو ٹریولر ہے اسے پتہ چل سکے کہ یہاں پہ آگے کوئی سکول ہے اور میں نے یہاں سے آہستہ گزرنا ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے خاص طور پہ 3 ڈپارٹمنٹس واسا ہو، پی ٹی سی ایل ہو یا ایس این جی پی ایل ہو، ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یومیہ کی بنیاد پہ شہر بھر میں کھلے مین ہولز ہیں ان کی پکچر شیئر کی جائیں گی اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ شاہراہوں پر موجود اسکولوں کے سامنے سائن بورڈ لگانے کی ہدایات۔ وقاص بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ بات کریں آٹا اور چینی کی قلت کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں ٹریلٹی سٹورز پر سستا آٹا، چینی اور گھی نایاب ہو گیا ہے۔ شہری سستی اشیاء کے لیے دربدر ہونے لگے۔ شہری کہتے ہیں بار بار چکر لگانے کے بعد بھی آٹا اور چینی نہیں ملتی۔ حکومت سے اپیل ہے اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا، چینی اور گھی نایاب، شہری سستی اشیاء کے لیے دربدر ہونے لگے۔ شہری کہتے ہیں بار بار چکر لگانے کے بعد بھی آٹا اور چینی نہیں ملتی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔
जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हफ्तावार सोशल मीडिया पर अवामुन्नास की जो शिकायत हैं उनके मसाइल सुने जाएं और मौका पर उनके तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं। आज भी उन्होंने 1 घंटा सोशल मीडिया पे लोगों की शिकायत सुनी है, मसाइल नोट किए हैं। तो इसी बारे में जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते की जो प्रोग्रेस थी, कितनी शिकायत आई हैं, अब तक एक हफ्ते में कितनी हल हुई हैं। सर, गुज़श्ता हफ्ते भी आपने ये प्रैक्टिस की थी, कितनी शिकायत आई थी, किस किस्म की शिकायत आ रही हैं और किस हद तक हल हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक का जो सेशन था मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव इसलिए रहा कि हमें टोटल 447 जो शिकायत मौसूल हुई, छोटे छोटे काम है म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी के हवाले से, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, पानी का पीने का साफ पानी है, सफाई है और कुछ रेवेन्यू से मुतलका और कुछ फैसलों से मुतलका शिकायत थी। तो ओवरऑल जो है 87 to 88% जो है हमारी डिस्पोजल है, यानी कि 88% हमने लोगों के एक हफ्ते के अंदर मसाइल हल किए हैं। अवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया, उसके लिए जो है अवाम को मेरे ऑफिस आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्पस इस लाइव सेशन का ये है कि ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो अवाम की हमारे साथ और हम अवाम के ज़्यादा करीब हो सकें इंशाल्लाह। और इसमें आपके तवज्जो से जी मैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अपनी पूरी टीम को, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत से एफर्ट से जो है अवाम का जो एतमाद है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे वो आए दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, अवाम की जानिब से भी इस अमल को काफ़ी सराहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ते में हैं और उनकी जो शिकायत थी वो 1 हफ्ते के दौरान हल हो गई हैं। फजील अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि झंग सिटी के मरीजों की मुश्किलात कम ना हुई। लाखों की आबादी वाले इलाके में मौजूद सिटी अस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान। अस्पताल में सिर्फ 2 बेड्स की इमरजेंसी मौजूद, जबकि कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सीटें भी खाली हैं। कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सीटें भी खाली हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम मजीद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग सिटी में लाखों की आबादी पर ये इलाका मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया गया है इसे BHQ लेवल का दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का शदीद फुकदान है, क्योंकि ये अभी तक जो है वो THQ लेवल ही है, इसे THQ वाली सहूलियात फराहम नहीं की गई। यहाँ पर मशीनरी समेत जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सीटें भी खाली हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए दीगर सहूलियात की, गायनी की, तो वो भी जो है वो उसकी भी अक्सर शिकायत देखने में आती हैं। खासतौर पर रात के औकात में यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की जो सहूलत है वो भी मौजूद नहीं है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज यहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जाने पर मजबूर हैं। मरीजों का जो खासतौर पर कहना है कि यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है। इसी के साथ अमराज जिल्द और दीगर बीमारियों के जो माहिर डॉक्टर हैं उनकी सीटें खाली पड़ी हैं, जिसके बायस मरीज प्राइवेट हस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर है। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जंग सिटी की लाखों की आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है, अच्छी बिल्डिंग है, सहूलियात का फुकदान है, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है डॉक्टर, इसके अलावा स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं है डॉक्टर, मेडिकल फिजिशियन की भी यहाँ पर कमी है। तो इसके अलावा यहाँ एक गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, उनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं है, तो मॉर्निंग में वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। तो अदरवाइज़ इसके अलावा जो पेशेंट है उनको रेफ़र किया जाता है सदर। तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए। तो सर ख़ास तौर पर देखा जाए यहाँ पर 2 बेड की इमरजेंसी है, इतना बड़ा एरिया है, इतनी ज़्यादा आबादी है, खुदा न खास्ता कोई मेजर सानिया हो जाता है तो ये किस तरह सर्वाइव करते हैं? सर यही होता है कि जब 2 बेड हों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों की आबादी है, एक हॉस्पिटल है, तो यहाँ से लेकर जाने के लिए वहाँ तक अक्सर ये होता है कि जब पेशेंट को वहाँ पर रेफ़र किया जाता है, रास्ते में ही अल्लाह ना करे ऐसा वकूआ हो जाता है। तो हमारी यही अपील है कि 2 बेड से इनको बढ़ाया जाए और हमारे इस नज़रसानी की जाए। जी बिल्कुल, साबिक दौरे हुकूमत में इसको मज़ीद एमरजेंसी को बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए थे, लेकिन वो बरूए कार ना लाए जा सके। मेरे साथ कुछ और अहले इलाका भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, मरीज़ को यहाँ पर लेकर आए हैं, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? रास्ता जना जी बहुत मुश्किलात का है। इतने डॉक्टर जो है थोड़े ना कोई मशीन है, एक्सरे वाली कोई नहीं मशीन, ना कुछ रहना चाहिए, साडा कोई इंतजाम किया जा रहा, ना कोई पुछदा करता। डॉक्टर ही काम है ना कोई इतने मशीन है, कोई एमरजेंसी कोई पै ही जाए ना जी, सानू सदर जाके जो रहना जी रेस्ट कर देंगे, उत्थे जाते जाते चाहता साडा मरीज फौत हो जासी
ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। हुकूमत से क्या दरख्वास्त करें? हुकूमत से ये भी मेहरबानी करके तवज्जो की जाए तो ये जरा हस्पताल जट की जाए, डॉक्टर की जाए, स्पैशल चेक की जाए, मशीनां जड़ियां ने एक्सरे वालियां ने या दिल दी मशीनां पुरानियां हैं जी, जो दा पाकिस्तान बड़े उदा दी लिहाजा मेहरबानी की। जंग के सिटी कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सीटें भी खाली हैं। वसीम अजीज, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। वालिदैन की इजाजत के बगैर मेल स्कूल हिट का 3 तालिबात को दूसरे स्कूल ले जाने पर वालिदैन का एहतजाज। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तारिकाबाद फैसलाबाद के हेडमास्टर तारिक जावेद ने 3 तालिबात के वालिदैन की इजाजत के बगैर दूसरे स्कूल ले जाकर बयान दिलवाया। तालिबात ने भी हेड टीचर पर अपने टीचर के खिलाफ झूठे बयान दिलवाने का इल्जाम लगा दिया। डिप्टी डीओ एजुकेशन मोहम्मद अमजद ने मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर के खिलाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तारकाबाद में आज पेरेंट्स की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया स्कूल हेड के खिलाफ, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया हेडमास्टर पर कि तारिक जावेद नामी जो हेड टीचर हैं उन्होंने 3 तालिबात को अपने स्कूल से अपने साथ ले जाकर किसी और स्कूल में अपने ही स्कूल के टीचर के खिलाफ हरासमेंट के बयान दिलवाए, जिस पर तालिबात ने भी ये इजहार किया कि जबरदस्ती उनसे अंगूठे लगवाए गए और उनके बयान जो है वो दिलवाए गए उनके टीचर के खिलाफ। वालिदैन का कहना था कि कोई इजाजत नहीं ली गई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी है कि तालिबात जो है स्कूल आने के बाद स्कूल से बाहर कहीं नहीं जा सकती। इवन स्कूल साजा भी अगर उनको कहीं ले जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स की आमादगी इजाजत लेना बहुत जरूरी है। वालिदैन अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे तहरीरी दरख्वास्त दें, महकमाना कार्रवाई होगी। जहांगीर अशरफ, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। जंग में टील के काश्तकारों तक पानी की फराहमी में मुश्किलात का सामना, काश्तकारों की शिकायत। महकमा ज़राअत तौसीन ने महकमा आपाशी और महकमा ज़राअत इस्लाह आपाशी के साथ मिलकर इक़दाम शुरू कर दिए। काश्तकारों की ड्रिप इरिगेशन और पोर्टेबल सोलर तक रसाई आसान बनाई जाएगी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में टेल के काश्तकारों के मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो पाया है। नहरों में पानी की कमी के बायस जो है वो टेल के काश्तकार जो है परेशानी का शिकार हैं, जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों के मसाइल को हल करने के वाले से इक़दाम का अमल जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अस्पताल में मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, बताइएगा टेल के काश्तकारों को हमेशा से मसाइल दरपेश रहे, इस हवाले से बताइएगा क्या रिकमेंडेशन देंगे टेल के काश्तकारों को मसाइल से बचने के हवाले से? देखिए, जो हमारा नहरी निज़ाम है इसमें काफ़ी अब मुश्किलात आ रही हैं। सारा जो हमारे ज़मींदारों का पानी की ज़रूरियातें पूरी नहीं हो रही, तो इसमें हमने और महकमा जो ज़राअत का हमारा शोबा है इस्लाह आपाशी, उन्होंने काफ़ी वर्क किया है और जो है पक्के खाल बनाए हैं, तो काफ़ी टेलों तक पानी पहुँच गया, लेकिन अब भी कम है और काफ़ी टेलों तक अब भी नहीं पहुँच रहा। और हमारे जो फसलात हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी कपास है उसको पानी का मसाइल का सामना था। इस रिश्ते में हमने अपने ज़िले में इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ 2 मीटिंगें की हैं और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम कपास के सीज़न में जो है इंशाल्लाह टेल तक पानी भी पहुंचाएंगे और नहरों की सप्लाई बहुत बेहतर करेंगे। बाकी जो ज़िम्मेदार हमारे मिसाल के तौर पर जिनके पास कोई इकानमी है, उनको हमारा मशवरा है कि वो सोलर सिस्टम लगवा लें या ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवाएँ, रेन गन सिस्टम लगवाएं, जिससे पानी की जो है यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाए। और इसके अलावा खेलियों पे काश्त को तरजीह दें, चाहे वो मक्की ज्वार बाइटा भी लगा रहे हैं, खेलियों पर काश्त करें। जो खेलियों पे काश्त फसल जो है वो बहुत पानी का कम इस्तेमाल करें। और मैं एक बात औकात आपको भी इंटरव्यू में भी बताता हूँ कि जो हमारा जोन है ये सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे हमें जो है मतलब पानी के मसाइल का सामना रहेगा। हमारा गन्ना और धान हमारा जो है वो असल फसलें नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें कपास का तोहफा दिया, तो हमारे ज़मींदारों को कपास लगानी चाहिए जो कि बहुत कम पानी इस्तेमाल करती और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती। इसलिए टील है। कम पानी वाली फसलों की काश्त की तरगीब दी जा रही है। अवैस खान, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। टॉपा टेक्सिंग के बाजारों में तजावुजात की भरमार, दुकानों के सामने इजाफी फट्टे और रेहड़ियां लग गईं। तजावुजात के बायस बाजार तंग हो गए। शहरियों का बाजार में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी ने आंखें बंद कर ली हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अहमद नदीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, टॉपा टेक्सिंग के बाज़ारों में जो है तजावुज़ात की मरमार है। दुकानों के बाहर जो है वो इजाफी फट्टे लग गए हैं और इजाफी फट्टों के आगे जो है वो रेहड़ियाँ सज गई, जिसकी वजह से जो बाजार तंग हो गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको पैदल गुजरने भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, बाजार जो है वो तजावुज़ात की वजह से सुकड़ कर रह गए हैं,
इससे के बारे किन मुश्किलात का सामना क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि आप आपके सामने ये जो रेडी लगी हुई है, बाज़ार में आना जाना बहुत मुश्किल है, फैमिली के साथ आए या वैसे शॉपिंग वगैरह करने आए बहुत मुश्किल है। इसी के साथ म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि इसके ऊपर अमल करवाएं ताकि जो रेडियाँ लगी हैं इनको शहर के बाहर शिफ्ट करवाया जाए ताकि आने जाने के लिए आसानी हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों का जो कहना है कि फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग करने आते हैं, ताम जो बाजार है उसमें जो पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। ताम उनका म्यूनसिपल कमेटी के अमले से ये मुतालबा है कि दुकानों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर इरशाद ने गोजरा का दौरा किया। डॉक्टर इरशाद ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। नून लीग MNA खालिद जावेद वराइच, अंजुमन ताजरान के सदर मंसूर भंगू, CO इश्तियाक गोंदल भी हमरा थे। CO इश्तियाक गोंदल भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर इरशाद ने गोजरा का दौरा किया है। डॉक्टर इरशाद ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। नून लीगी MNA खालिद जावेद वराइच, अंजुमन ताजरान के सदर मंसूर भंगू, CO इश्तियाक गोंदल भी उनके हमरा थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMIUM मोहम्मद फरूक रशीद का फैसलाबाद का दौरा। CO एजुकेशन काशिफ ज़िया समेत जिले और तहसील सतह के एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की। जिला भर के सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम का जायजा लिया गया। स्कूलों में दाखिलों को शरह बढ़ाने की हिदायत की गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, फैसलाबाद में दाखिला मुहिम का जायज़ा लेने के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU फारूक रशीद ने आज फैसलाबाद का विजिट किया। CO एजुकेशन समेत तमाम जो ज़िम्मेदारान थे, अफसरान थे, उनसे मुलाकात हुई। बात करते हैं क्या कहते हैं सर एडमिशन के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद अभी थोड़ा पीछे है, काफ़ी इसमें अवामिल जो हैं वो भी मौजूद हैं क्योंकि असाज़ा मुख्तलिफ ड्यूटियों पर रहे, बुक्स लेट मिली। क्या कहते हैं इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद छुट्टियाँ भी हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन के हवाले से कि जो एनरोलमेंट है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, वो हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। ये हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके हिसाब से हमने टारगेट्स तमाम ज़िलों में तमाम CEOs को दिए हुए हैं। फैसलाबाद का टारगेट तकरीबन 35,000 के करीब है इस साल जो है। अभी जो एनरोलमेंट है दरमियान में, चूँकि जैसे आपने ख़ुद बताया कि डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ पे टीचर हैं, ख़ास तौर पे सेंसस ड्यूटी की वजह से हमारे एनरोलमेंट टारगेट अफेक्ट हुए हैं। लेकिन चूँकि अब टीचर वापस आ चुके हैं तो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में काफ़ी एक अच्छा एक विजिबल इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। इन्होंने चीज़ों को लिफ्ट किया है, इम्प्रूव किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। हमारे 2 फेजेस चलते हैं एनरोलमेंट के हवाले से। एक जो मेजर फेज़ है वो तो छुट्टियों से पहले होता है, जो मार्च अप्रैल में चलता है। सेकंड जो होता है वो फिर हमारा छुट्टियों के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। तो हमने अपने टीचर्स के साथ जो DDOs हैं, CEOs के साथ जो उनके फील्ड ऑफिसर हैं उनके साथ अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ारत सनअत व तिजारत का फैसलाबाद में सेहतमंद खेलों के फ़रोग़ का फैसला। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाना है तो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के नक्शे कदम पर चलें। वज़ारत सनअत व तिजारत ने खेलों के फ़रोग़ के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी आगाह कीजिएगा। वज़ारत सनअत व तिजारत का फैसलाबाद में सेहतमंद खेलों का फ़रोग़। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाना है तो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के नक्शे कदम पर चलें। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ारत सनअत व तिजारत ने फैसलाबाद में खेलों के फ़रोग़ के हवाले से दिलचस्पी ज़ाहिर की है और फैसलाबाद में स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकाम जारी किए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के नक्शे कदम पर चलते हुए फैसलाबाद में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेल को प्रमोट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ारत सनअत व पैदावार की तरफ से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला जारी करते हुए हिदायत जारी की गई हैं कि शोबा इंडस्ट्रीज और फैसलाबाद के दीगर जितने भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं उनको लूप पे लेकर वहां पर जो है वो वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के मैच परवान चढ़ाए जाए और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को जो है वो मास्टर प्लान लेते हुए उस तरह के फैसलाबाद में तमाम तर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और यूथ हेल्दी एक्टिविटीज को जो है वो मुतहर्रिक किया जाए। जी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के स्पोर्ट्स प्लान की मुआवनत ली जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ारत सनअत व तिजारत का फैसलाबाद में खेलों के फ़रोग़ का फैसला।
स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाना होगा तो डीसी सियालकोट के नक्शे कदम पर चलेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर चंडीगढ़ आसिफ रजा का शहरियों से ऑनलाइन राब्ता 1 घंटा बराह रास्त फेसबुक पर शहरियों के मसाइल सुने। गुज़श्ता हफ्ता कितनी ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई, कितने फीसद हल हो गई, ये भी आपको बताएंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ आसिफ रजा का शहरियों से ऑनलाइन राब्ता हुआ है। 1 घंटा बराह रास्त फेसबुक पर शहरियों के मसाइल सुने। गुज़श्ता हफ्ता कितनी ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई, कितने फीसद हल हो गई, ये भी जानेंगे वकार घमंड से। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हफ्तावार सोशल मीडिया पर अवाम नास की जो शिकायत हैं उनके मसाइल सुने जाएं और मौका पर उनके तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं। आज भी उन्होंने 1 घंटा सोशल मीडिया पे लोगों की शिकायत सुनी है, मसाइल नोट किए हैं। तो इसी बारे में जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते की जो प्रोग्रेस थी, कितनी शिकायत आई हैं, अब तक 1 हफ्ते में कितनी हल हुई हैं। सर, गुज़श्ता हफ्ते भी आपने ये प्रैक्टिस की थी, कितनी शिकायत आई थी, किस किस्म की शिकायत आ रही हैं और किस हद तक हल हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक का जो सेशन था मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव इसलिए रहा कि हमें टोटल 447 जो शिकायत मौसूल हुई, छोटे छोटे काम है म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी के हवाले से, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, पानी का पीने का साफ़ पानी है, सफाई है और कुछ रेवेन्यू से मुतल्का और कुछ फैसलों से मुतल्का शिकायत थी। तो ओवरऑल जो है 87 to 88% जो है हमारी डिस्पोजल है, यानी कि 88% हमने लोगों के 1 हफ्ते के अंदर मसाइल हल किए हैं। अवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया, उसके लिए जो है अवाम को मेरे ऑफिस आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्पज़ इस लाइव सेशन का ये है कि ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो अवाम की हमारे साथ और हम अवाम के ज़्यादा करीब हो सकें इंशाल्लाह। और इसमें आपके तवज्जो से जी मैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट्स को वकार घमंड अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद के 5 माह के दौरान 17 पुलिस मुकाबले, 239 डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार करके मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया। कायम मुकाम एसएसपी ऑपरेशन हाफिज कामरान कहते हैं डॉल्फिन फोर्स ने जुराइम रोकने में अहम किरदार अदा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद के 5 माह के दौरान 17 पुलिस मुकाबले हुए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी तैयब मकबूल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम के खात्मा के लिए कायम की जाने वाली डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद में 5 माह के दौरान सैकड़ों की तादाद में जराइम पेशा अनासर और दर्जनों की तादाद में गैंग्स को गिरफ्तार किया। 5 माह में डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद ने मजीद क्या कार्रवाइयाँ की और अफसरान इन कार्रवाइयों से किस हद तक मुतमईन है, इस पर हम बात करेंगे एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद हाफिज कामरान असगर से। वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा कि 5 माह में आप क्या समझते हैं कि डॉल्फिन ने उसी स्पिरिट से काम किया जिसकी वजह से इनको कायम किया गया था, और गैंग्स के अलावा क्या मजीद कार्रवाइयाँ की हैं 5 माह में? जी थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है पुलिस फोर्स का रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जिस बारे में आपने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले। फैसलाबाद में जो डॉल्फिन फोर्स है उसका बड़ा पॉजिटिव रोल है रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और ऑब्वियसली उनकी पेट्रोलिंग से एक डेटरेंस का फैक्टर भी है जो लोगों की बहबूद और उनकी सेफ्टी के लिए एक आंसर है। मैं सिर्फ आपसे पिछले 5 माह में जो इनकी मेन जो एफर्ट्स हैं और जो अचीवमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पिछले 5 माह जो इस साल के 5 माह हैं उसमें तकरीबन 17 के करीब पुलिस मुकाबले हैं जो लाइव डॉल्फिन फोर्स ने किए हैं। उसके अलावा 239 के करीब चोर डकैत लाइव जो है रोड से जो कार्रवाइयाँ करते हुए उनको इन एक्शन जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो असला की कॉन्फिस्केशन के बाद दिए गए हैं जो इलीगल वेपन्स लोगों के इस्तेमाल में होते हैं। इसके अलावा 374 के करीब टारगेट ऑफेंडर्स जो हैं जो कि यूजुअली क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और हमारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, लोगों के साथ इस जो ज्यादती है उसका बायस बन रहे होते हैं, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया है। और ये जो एक्टिवेशन है डॉल्फिन फोर्स की, उसमें हमारे जो डॉल्फिन फोर्स के इंचार्ज हैं वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जितनी हमारी फोर्स है, और तकरीबन 50 अबव हमारी टीम्स हैं जो 5 टाउन्स में अपनी 3 शिफ्टों में पेट्रोलिंग करके हमारे इस पूरे निज़ाम को मुअस्सर बना रही हैं। थैंक यू। एसएसपी हाफिज कामरान की जानब से ये बताया गया कि डॉल्फिन फोर्स ने जुराइम रोकने में अहम किरदार अदा किया। तैयब मकबूल होने का शुक्रिया।
फैसला आबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मनशियात केस का फैसला सुना दिया। मनशियात के कारोबार में मुलव्वस 3 अफराद को उम्र कैद और 1-1 लाख जुर्माने की सजा दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हाशिर वड़ायत से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही की जानिब से मंशियात केस का जो फैसला है वो यहाँ पर सुनाया गया है। एक बड़ा केस है जहाँ पर अदालत की जानिब से इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस जो 3 मुलजमान हैं, तीनों मुलजमान को अदालत की जानिब से उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया है। 3 मुलजमान जिनमें फ़ारूक, शेर अब्बास और रिजवान शामिल हैं। तीनों मुलजमान के पास से मजमूई तौर पर जो है वो 96 किलो से ज़ायद चरस और 18 किलो से ज़ायद जो फ्यून है वो बरामद की गई थी और 2022 के अंदर इनके खिलाफ जो है वो थाना ठीकरी वाला में 9C की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। बाद में इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है चौधरी इनाम इलाही उनकी अदालत के अंदर हुआ, जहां पर पुलिस की जानिब से जो चलान अदालत के अंदर पेश किया गया था। पुलिस ने मौका इख्तियार किया गया था कि जो मुलजमान है ये मंशियात की खरीदो फरोख्त का जो काम है वो करते हैं और इसी सिलसिले में ये जो मुलजमान है ये मंशियात की तरसील कर रहे थे, जहाँ पर पुलिस की जानिब से मौका पर जो है वो कार्रवाई की गई और मुलजमान के पास से जो है मंशियात है वो बरामद की गई जिसमें चरस और फ्यून शामिल थी। मुलजमान के पास से जो है वो बरामद की गई और उसकी मिकदार जो है वो 1 किलोग्राम से ज़ायद थी, जिसके बाद इनके खिलाफ जो है वो 9C की दफात के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया, क्योंकि 9C का मुकदमा जो है उसको दर्ज किया जाता है जब किसी मुलजिम के पास से 1000 या 1 किलोग्राम से ज़ायद जो मंशियात है वो बरामद हो और इनके पास से 96 किलो चरस उसके साथ साथ 18 किलो अफीम जो है वो बरामद की गई थी, जिस पर इनके खिलाफ 9C की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अब अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो सुनाया गया और अदालत ने इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस जो 3 मुलजमान है तीनों मुलजमान को उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा का हुक्म जो है वो दिया गया है। जब सजा का हुक्म दिया गया है। हाशिर वड़ायत अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अदम दिलचस्पी के बायस 15 साल से जायद अरसे में इकबाल स्टेडियम में एक भी मैच न हो सका। शायकीन क्रिकेट मायूस, कहते हैं कि PCB फैसलाबाद के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो महरूम है। PCB की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो 10 विकेटें और ग्राउंड को जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयार कर लिया गया, लेकिन PCB जो है वो फैसलाबाद की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, जिसके बायस अरसा दराज से जो है वो फैसलाबाद में कोई भी इंटरनेशनल मैचेस और PSL के मैचेस जो है वो नहीं हो सके। यहाँ पे शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते भाई अब क्या कहेंगे इंटरनेशनल मैचेस क्या बात स्टेडियम में इन्होंने इतना खूबसूरत ग्राउंड तैयार कर लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि ग्राउंड की तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो कम अज़ कम इस शहर में इंटरनेशनल मैचेस तो होने चाहिए। आखिर PCB फैसलाबाद के शायकीन को इंटरनेशनल मैच क्यों नहीं देना चाहता? हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ भी और शहरों की तरह इंटरनेशनल मैचेस करवाए जाएँ। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो करवाए जाएँ। सर आप क्या कहेंगे, मैचेस आप देखते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे मैचेस होने चाहिए? जी सर, यहाँ पर मैचेस ज़रूरी हैं शायकीन के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा से फैसलाबाद में कोई भी मैच नहीं हुआ। चलो पहले तो ये था कि अपना इंटरनेशनल या PSL बंद था किसी वजह से, लेकिन अब तो चल पड़े हैं। अब तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए। फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए। अली रजा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।